Hello children, welcome back to my English channel English at Ease, and today I am going to teach you the poem Goodbye Party for Miss Pushpa TS of your class 7 unit 5 section 3 English Course Book New Pathways Oxford University Press. Children, this poem is very famous poem and it is a satire. This poem is also taught in the different classes of different school in their concerning books. Children, the poet of the poem is Nissim Ezekiel. Nissim Ezekiel is a Jewish Indian poet. By birth, he is an Indian and he was born in Mumbai on 16 December 1924 and he died 9th January 2004 in the age of 79, and his major works are Time to Change, 60 Poems, The Unfinished Man, and The Night of the Scorpion. Okay, students, and he is known as the father of modern Indian English poetry. And in this poem, Ezekiel satires the spoken style of the Indian people when they try to speak English, particularly when English is their second language. Okay, students, you know that in our country, English is considered as a high status and prestigious language, and whether it is the official language of our country. And this poem, through this poem you can say that the poet satires such the people who are semi-educated. Children, आज हम लोग गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS के बारे में पढ़ेंगे. और चिल्ड्रन, you'll get the exercises part and the question answers, other MCQ including, and all the extra questions also in the description box. Okay, students. Children, इस पोएम में निसिम एजिकल ने एक व्यंग किए हैं. सैटायर मीन्स व्यंग, व्यंगात्मक ये पोएम है. व्यंग का मतलब क्या है? जहाँ पर कोई चीज़ों को हम एक मजाक के रूप में लेते हैं. लाइफ इज़ ए फुल ऑफ कॉमेडी, लेसन का यही बेस है. कॉमेडी के रूप में हम बताते हैं, लेकिन उसके पीछे एक डीप मीनिंग होता है. कोई चीज़ हम समझाना चाहते हैं, कोई चीज़ हम बताना चाहते हैं, लेकिन उसको एक ह्यूमर के साथ, एक मजाक के साथ, जहाँ समझने वाले लोग समझते हैं, बहुत गहराई से इस बातों को समझते हैं, बोलने वाले क्या बोलना चाहते हैं, किस पॉइंट पर उनका फोकस है. ओके स्टूडेंट्स, देश में आज भी हमारी जो राष्ट्रभाषा
के रूप में हम हिंदी को कहते हैं, पर दुख की बात यह है आज भी हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी भी नहीं मिला है। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, फिर भी देश में हिंदी को हम राष्ट्रभाषा के रूप में कंसिडर नहीं कर पाते हैं। लोग कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश को इतना हाई प्रोफाइल लैंग्वेज के रूप में मानते हैं। इवन दैट in the news channel you have seen that when the Bollywood stars, they are invited to speak something, they also speak in English, जबकि उनका लाइवलीहुड कम्प्लीटली हिंदी पर ही है। हिंदी से रोजी रोटी कमाने वाले लोग भी इंग्लिश में बोलने से अपने को शान समझते हैं। खैर, इस पोएम में निसिम एजिकल सटायर किए हैं। जिन लोग सेमी एजुकेटेड है, जिन लोग इंग्लिश को बोलना चाहते हैं लेकिन कंप्लीट बोल नहीं पाते हैं, आधा अधूरा बात, कोई ग्रामर का परवाह नहीं करते हैं, दे डोंट केयर ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, फ्रेजेस एंड द यूज ऑफ द प्रीपोजिशन, यूज ऑफ द एडवर्ब्स, यूज ऑफ द लॉजिक ऑफ द सेंटेंस। For them, निसिम एजिकल सटायर्स। जैसे कि आप देखोगे बहुत लोग चलते फिरते इंग्लिश में पीपल को पीपल्स बोल देते हैं, चिल्ड्रन के जगह में चिल्ड्रंस बोलते हैं, आई वॉज काम ऐसे सेंटेंस का यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन में कभी देखोगे बहुत ही ह्यूमरसली कोई लिखते हैं, आई कुडंट कम टू स्कूल बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, you are suffering from fever, so that grant my leave. Okay students, that is very humorous. Like that, in Goodbye Party, the poet includes so many such kinds of sentences, and it is very interesting to listen this poem. Now let's start the poem. In this poem, the people were assembled in a hall, and their teacher, their sister teacher, Miss Pushpa T.S., was going to foreign country for her better education. And all the teachers, you can say the gentlemen, they were assembled, and the narrator, the poet, he was addressing. Okay? And they gave her a goodbye, a farewell. ओके सभी ने, जैसे कि हम लोग आपके स्कूल में भी देखे होंगे, क्लास 12th के स्टूडेंट्स सेशन के लास्ट में उन्हें हम लोग फेयरवेल पार्टी देते हैं, ब्लेसिंग सेरेमनी के रूप में हम लोग मनाते हैं। वी सेलिब्रेट एज द ब्लेसिंग सेरेमनी। ओके, that is the farewell party. Like that, now the poet is addressing. Okay, you enjoy the poem, that is very beautiful. Now listen. Friends, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days, and we are meeting today to wish her bon voyage. Bon voyage means that is the farewell. वेल विश करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और सब हम आप जानते हो फ्रेंड्स,
हम लोगों के डियर सिस्टर ए मिस पुष्पा टीएस, शी इज़ गोइंग टू फॉरेन कंट्री. That is the first stanza. You are all knowing, friends. Already in the I have told you that the poet doesn't care of the use of grammar. That is the satire. मैंने पहले ही बताया, इस पोएम में आप देखोगे सेंटेंस का कोई तालमेल आपको नहीं मिलेगा. नॉन वर्ड्स पोएम है, इसमें कोई तालमेल नहीं रहेगा, कोई लिरिक नहीं है, रिदम नहीं है, कोई सेंटेंस में ये ग्रामर का कोई यूज़ नहीं है. जैसे कि पहले हम बताया ना, बहुत लोग देखोगे न्यूज़ चैनल में भी इस तरह का सेंटेंस कहते हैं, आई बट इस तरह का वो आधा अधूरा रह जाते हैं. यू नो दैट आई फील, मतलब कोई सेंटेंस में कोई ताल्लुकात नहीं रहता है. पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस क्या बोलना चाहते हैं वो बोल के वो सेंटेंस को आगे बढ़ा देते हैं. तो ऐसे ही लोगों के लिए ये सटायर है, मैंने पहले बताया. लैंग्वेज स्टूडेंट्स एक कम्युनिकेशन है. सपोज दैट यू हैव टू गो टू दिल्ली. आप बाय एयर जाओ, बाय ट्रेन जाओ, आपको जाना तो दिल्ली है. तो लैंग्वेज भी एक ऐसा ही है, ऐसा ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम ट्रेन में भी जा सकते हैं. अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं प्लेन से भी जा सकता हूँ. कम पैसा हो तो ऑन रोड जा सकते हैं. लेकिन जाना तो हमको दिल्ली है. टारगेट मेरा दिल्ली जाना है, भले ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ भी हो. ऐसे ही नॉलेज को हासिल करने के लिए लैंग्वेज कोई बार नहीं हो सकता है. लैंग्वेज कैन नॉट बी बार फॉर योर नॉलेज ऑन द पाथ ऑफ द नॉलेज. आज भी बहुत सारा देश, as an English teacher I am not telling it, but this is the fact. In China, in Japan, in Russia, in the USA, the people don't speak in English, they use their native language. Okay students, and they are very comfortable and with the people also. When our country got freedom in 1947, only 3% people they knew English. Okay students, come to the poem now. Later on I will tell you so many things. Children, second stanza. You are all knowing, friends, what sweetness is in Miss Pushpa. I don't mean only external sweetness but internal sweetness. Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason but simply because she is feeling. देखो, she is feeling. In the second stanza, children, you see that the narrator is telling, that not only Miss Pushpa is sweet external, बाहरी लुकआउट से, अपीयरेंस से मिस पुष्पा को बहुत स्वीट नज़र नहीं आता है, बल्कि अंदर से भी बहुत ही स्वीट है. मतलब हर बिहेवियर, हर स्माइलिंग, हर स्टाइल ऑफ टॉकिंग, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्वीट. जैसे आप देखोगे ना, कुछ लोगों से आप बात करते हो तो आपको बहुत डर लगता है. हर्ष वॉइस, आवाज़ में बहुत एक कर्कशता रहता है, हर्ष वॉइस. लेकिन कुछ लोगों का बात में देखोगे बहुत मिठास नज़र आता है, बहुत कॉमेडी नज़र आता है और आपको बात करने भी बहुत मज़ा आता है. ऐसा ही मिस पुष्पा के बारे में कहा गया है. एक्सटर्नल कैरेक्टर केवल स्वीट नहीं है, इंटरनली भी वह बहुत स्वीट है, सिंपल है.
Miss Puspa, third stanza, Miss Puspa is coming from a very high family. अब ऑडिटर मिस पुष्पा का फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं. मिस पुष्पा belongs to a high family and her father was a renowned advocate. You see that sentence. Miss Puspa is coming and later on his father was renowned advocate in Balsar or Surat. I am not remembering now which place. The orator is telling like that way. They are the combination of the sentences you see there. कहते हैं मुझे अब याद नहीं है, लेकिन इनके फादर एक बहुत नामी दामी एडवोकेट है, वकील है, जो कि हो सकता है बालसर में या सूरत में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. मतलब ये लैंग्वेज बहुत फॉर्मली है, इसमें जो है इंग्लिश का उस पोएट्री का जो लिरिक होता है वो नहीं है. मैंने पहले बताया एक चलता फिरता जो डायलेक्ट कह सकते, बोली, जिसको हम लोग बोली कहते हैं, डायलेक्ट के रूप में लिखा गया है. ऐसे ही कहता नॉर्मली एक कैजुअल लैंग्वेज इन बलसर और सूरत. आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ व्हिच प्लेस. मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है कहाँ उनका पिताजी थे, एडवोकेट थे. Oh yes, next stanza, see that he is telling Surat. Oh yes, Surat means in Gujarat. Okay, Surat. Yeah, yes. Once only I stayed in Surat with family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking. देखो अनरिलेटेड बात, एक इससे कोई ताल्लुकात नहीं है. His wife was cooking nicely. That was long time ago. नरेटर ने एक ऐसा ही साइट की, ऐसे एग्जाम्पल दिए. ये मैं भी जब कभी सूरत में गए थे और मैं सूरत में थे और वहाँ पर मेरा अंकल का एक दोस्त और उनके वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती थी. और ये बहुत दिन पहले की बात है. मतलब इससे कोई लॉजिक नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ऐसे ही बताते हैं. क्योंकि मैंने पहले ही बताया ना, जो बहुत लोग इस तरह से इंग्लिश बोलते बोलते कहते हैं ना, यू नो बट आई केम, कोई सेंटेंस का कोई मतलब रिलेटेड नहीं है, रिलेशन नहीं रहता है. तो इलॉजिकल सेंटेंस का यूज़ करना, दैट इज़ द सेटर. यू सी हियर द नेक्स्ट नाउ कमिंग बैक टू मिस पुष्पा. ठीक है, ओके. अब देखो नॉर्मली बात कर रहे हैं. कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी with men also and ladies also. Whenever I asked her to do anything, she is saying, just now only I will do it. That is showing good spirit. I am always appreciating the good spirit. Here the poet is telling the good trait, personal character, personal ट्रेट ऑफ मिस पुष्पा. मिस पुष्पा का अच्छा गुण के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताते हैं. मिस पुष्पा अपना केवल वुमेन के साथ जो उनके कॉलिग्स थे ऐसा नहीं है, लेडीज़ के साथ ही वो बहुत घुल मिल के रहती थी, बल्कि सभी के साथ, मैन एंड वुमेन बोथ. शी वॉज वेरी फ्रैंक एंड शी वॉज वेरी कंफर्टेबल विथ एवरीवन. इन वर्किंग सोसाइटी में जब हम काम करते हैं तो इस तरह का कोई जेंडर, लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजियन को हम सामने नहीं आने देते हैं. हम लोग सब मिलजुल कर काम करते हैं. दैट इज़ द वर्क कल्चर. ओके, तो नैरेटर भी यही बात कहते हैं. मिस पुष्पा में बहुत अच्छा एक वर्क कल्चर है, सबके साथ बहुत कंफर्टेबली काम करती है और कभी भी उन्होंने ना नहीं कहती. ये बहुत बड़ा एक क्वालिटी होता है. कोई भी इंस्टीट्यूशन में जब हम कोई काम करते हैं, जब हम वर्क करते हैं, तब मुझ में ये फीलिंग होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए कि बिना बोले मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं. मेरे अंदर में एक क्रिएटिवनेस होना चाहिए
जिसके चलते पीछे किसी को डंडा लेके बोलना नहीं पड़े। आप क्लास में जब पढ़ते हो तब क्लास टीचर का हर चीज़ आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। आप ऐसा कुछ करो, ऐसे कुछ क्रिएटिवनेस करो, आप में ये सृजनशीलता आना चाहिए ताकि आप ऐसा इनोवेटिव कुछ काम करो, टीचर आपको अप्रिशिएट करे। दैट इज़ द गुड क्वालिटी एंड दैट इज़ द गुड स्पिरिट। Okay students, next now the lust. Pushpa miss. Now the poet is telling Pushpa miss is never saying no. कभी ना नहीं कहती. Whenever I or anybody is asking, she is always saying yes. And today she is going. फिर poet कहते हैं आज वो जा रही है. She is departing us. हम लोगों को छोड़कर जा रही है टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट एंड वी आर विशिंग हर बॉन वॉयज दैट इज़ द फेयरवेल वेल विश गुड बाय पार्टी। और हम लोग सभी इन्हें शुभकामनाएं देते हैं, वेल विश करते हैं। एंड ऑल द कॉलीग्स दे बेड goodbye, farewell. Now I ask other speakers to speak and afterwards Miss Pushpa will do summing up. Now at the last, the narrator addresses all the colleagues and some of the speakers. He invites them to say few words about Pushpa. And after that, he is telling that at last Miss Pushpa will address us. Okay, that is the poet. I hope that you have enjoyed this poem. That is the poem, and I hope that you have enjoyed a lot. Sometimes I am telling like that way that you can rectify it. Just I told, जैसे कि मैंने अभी भी बताया ना, you have enjoyed the poet. That is not poet. You have enjoyed the poem. Okay. That is the thing, students. That is a satire. Okay. Now, children, you will get all the exercises and other things in the description box. And the links of the other chapters you will get in the same description box. Okay, students. Goodbye.